This is something which every doctor will come across, not just who is going to do a postmortem examination. Even clinical practice में भी जाओगे तो medical legal cases आएंगे, और उसमें भी कैसे comply करना है वो हमें पता होना चाहिए. So last time I started with inquest, which if we go by definition is an inquiry or investigation into a cause of death. If a person dies from natural causes, we don't need any investigation into it to fix somebody's liability. But if the death is unnatural, sudden, or suspicious, police or the magistrate will hold an inquiry or an investigation to find out as to who was responsible for the death and books. Different types of inquest followed all over the world. I listed down. We will focus mainly on police and the police and the magistrates inquest because that is what is being followed in our country. We will see in detail how an inquest is being conducted by police, and the same procedure is followed by magistrate, but there are different cases where only magistrate will do an inquest. So we start the topic for the day by police inquest. It is held by a police officer, and the police inquest is given in section 174 CRPC. ये आपको याद होना चाहिए पुलिस इंक्वेस्ट किस सेक्शन में लिस्टेड है. Then usually a person not below the rank of sub inspector should hold an inquest. Ideally, it should not be somebody who is below the rank of sub inspector should hold an inquest, but every state government has come out with provisions where even head constables can conduct an inquest or do an inquiry. Once a case comes to a police inspector or a constable investigating a death, he is then called as IO or an investigating officer. IO एक ऐसा वर्ड है जो कॉमनली यूज होता है, उसका मतलब है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर. वो पर्सन जो पर्टिकुलर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है. दिस इज द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ इंक्वेस्ट बीइंग डन इन आवर कंट्री. अगर 100 एक इंक्वेस्ट भरी जाती हैं तो 95 to 98 पुलिस की ही होती है. बाकी की जो या 2 या 5 इंक्वेस्ट बचती हैं वो केस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे मैजिस्ट्रेट ही कंडक्ट कर सकते हैं. This one is considered inferior to a magistrate's inquest because magistrate is somebody who is believed to be much more knowledgeable in investigation of matters related to death as compared to police. Next we'll see what is the procedure. पुलिस ये इंक्वेस्ट कैसे कंडक्ट करती है. सबसे पहले कहीं पे कोई इंसिडेंट हुआ, कोई डेड बॉडी मिल गई, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, किसी ने किसी को somebody killed somebody, another person, that is homicide, or somebody died suddenly without any expectation. So whenever such death occurs, an intimation is to be sent to the police station that so and so place has witnessed a death. As soon as the police officer receives the information about death at any place, सबसे पहला काम है उसे अपने लोकल मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना कि सर मेरे एरिया में एक फलाना डेथ की इंफॉर्मेशन आई है. मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करने के बाद वो उस जगह पे जाएगा जहां पर डेड बॉडी मिली है. Wherever that dead person is lying, who is supposed to have died either of natural, sudden, suspicious cause, police officer will proceed to that place. वहां पर जगह पे लोगों से पूछ के और जहां डेड बॉडी मिली है उसके आसपास के एरिया को एग्जामिन करके, डेड बॉडी को एग्जामिन करके, उसके बाद वो एक पेपर पे रिपोर्ट बनाता है कि उसे वहां जाकर के क्या दिखा और पूछताछ करने पे उसे क्या पता चला. जब वो एक पेपर पे रिपोर्ट बनाता है, उस पेपर के ऊपर 3 लोगों के सिग्नेचर होते हैं. एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो केस इन्वेस्टिगेट कर रहा है और 2 लोकल पर्सन जिन्हें उस केस के बारे में जानकारी होती है. सपोज किसी गांव में कोई फील्ड में एक डेड बॉडी मिली, वहां अगर 10-20 लोग इकट्ठा हैं
तो जब पुलिस वहां पे चीजें देख रही थी, लिख रही थी, लोगों से पूछताछ कर रही थी, उस टाइम जहां वहां पर जो भी दो लोग खड़े थे, जिन्हें कुछ भी आइडिया है कि ये डेड बॉडी यहाँ पे कब मिली, किसकी हो सकती है, कैसे इसकी डेथ हो सकती है, ऐसे किसी भी दो लोगों के वो उस रिपोर्ट पे सिग्नेचर कराते हैं। ये जो दो लोग पुलिस पकड़ती है उसको पंच बोलते हैं। ये एक चीज कॉमन है जो तुम लोगों ने शायद सुनी होगी। रिपोर्ट में सब पूछताछ करने के बाद एंड में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऐसा एक लाइन पुट अप करता है कि बॉडी देखने के बाद, बॉडी के ऊपर कपड़े देखने के बाद, चोट देखने के बाद, लोगों से पूछने के बाद, उसके हिसाब से या उसकी बिलीफ में ये आदमी क्यों और कैसे मर सकता है। So he has to put down that conclusion as to his apparent cause of death. When he puts it, he has to take care of the clothing over the body, injuries, position, surrounding, type of weapon if there has been used and recovered at that place, etc. तो डेथ की इंटीमेशन हुई, पुलिस ने मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किया, उसके बाद जहाँ पे डेड बॉडी है वहां पे गया, वहां पे उसने इन्वेस्टिगेशन किया कि ये डेड बॉडी यहाँ पे क्यों, कैसे, कब आई हो सकती है और इसके मरने का क्या कारण हो सकता है। उसको पेपर पे कन्वर्ट किया, दो लोगों के साइन लिए जो उस समय में मौजूद थे, खुद का भी सिग्नेचर किया, और सिग्नेचर के जस्ट ऊपर उन तीनों के हिसाब से इसकी डेथ क्यों, कैसे और कब हुई हो सकती है उसके ऊपर एक नोट डाला जाएगा। ये जो रिपोर्ट बनती है, इस रिपोर्ट को कॉमनली हम इंक्वेस्ट पंचनामे के नाम से जानते हैं। ठीक है। Panchanama is that report, and that report is being prepared during a inquest or an inquiry or investigation into death. तो ऐसी जब भी कोई रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इस पर्टिकुलर केस में बनाता है, उसको हम कहते हैं इंक्वेस्ट पंचनामा। इसमें हमेशा दो विटनेस के सिग्नेचर होते हैं जिन्हें हम पंच कहते हैं। क्योंकि उनको पंच कहते हैं इसलिए यह पंचनामे के नाम से जाना जाता है। एक चीज एज ए डॉक्टर हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए, इट इज नॉट जस्ट पर्टेनिंग टू डॉक्टर्स बट टू एनीवन, कि एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास सेक्शन 175 सीआरपीसी ने पावर दी है कि वो किसी भी केस से रिलेटेड सवाल पूछने के लिए अपने पास बुला सकता है। A police officer has an authority to summon any person to answer questions. This is there in 175 CRPC. एज ए डॉक्टर आपको क्यों पता होना चाहिए? इसलिए कि आपने कल को कोई ऐसा केस ट्रीट किया है जिसका इंजरी है या उसकी सब्सिक्वेंट डेथ है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। तो अगर आपको पुलिस स्टेशन से कोई बुलाता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो आप उसे मना नहीं कर सकते हो, आपको पुलिस स्टेशन जाकर के उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी। नहीं करोगे तो 6 महीने तक की जेल या 1000 रुपए तक का फाइन हो सकता है। Don't be arrogant in asking the investigating officer to come to your hospital because you are not free. He has the power to call you at his place, and if you don't go, you can be fined 1000 rupees, or the case may move up to the court giving you 6 months of imprisonment. अब हम वापिस पंचनामे पे आते हैं। सारी इन्वेस्टिगेशन हो गई, पुलिस ऑफिसर और दो पंच के हिसाब से जो डेथ हुई है, अगर उन्हें लगता है कि इसमें कोई सस्पिशन या फाउल प्ले नहीं है, ये एक नेचुरल डेथ है जिसमें किसी का कोई रोल नहीं है, तो ये तीनों मिलकर के डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने की पावर रखते हैं। They have been given powers as per section 174 CRPC to order for disposal of such dead body। जहां उनको इन्वेस्टिगेशन के बाद ऐसा लगता है कि इसमें कोई फाउल प्ले नहीं है, किसी के ऊपर लायबिलिटी फिक्स करने की जरूरत नहीं है, तो वो लोग नियरेस्ट रिलेटिव को, अगर बॉडी नोन है तो क्रीमेशन के लिए हैंड ओवर कर सकते हैं। अननोन बॉडी है, चाहे तो वो दे सकते हैं, यूजुअली प्रैक्टिस में देते नहीं, बट दे हैव द पावर टू ऑर्डर फॉर डिस्पोजल ऑफ ए बॉडी विदाउट एनी फर्दर थिंग बीइंग डन। वो फर्दर थिंग क्या है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अगर उन्हें लगता है कि इस डेथ में कुछ गड़बड़ है,
तो डेड बॉडी को कभी डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाएगा. They will ask for a post-mortem to be done to find out the real exact cause of death, manner of death, time of death. There are lots of things that we will see when we come to medical legal autopsy. इंक्वेस्ट पंचनामा जब बनता है उस समय ये डिसाइड होगा कि किसी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होगा या नहीं होगा. अगर तीनों को लगता है, दो पंच और पुलिस को, कि इसमें पोस्टमार्टम कराना चाहिए, तो वो पोस्टमार्टम करने की रिक्वेस्ट डॉक्टर को देंगे. उन्हें लगता है इसमें पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं है तो वो डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं. प्रैक्टिकली हमेशा लाइफ में याद रखना, किसी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होगा या नहीं होगा, ये डिसाइड करने वाला पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट ही होता है, डॉक्टर नहीं होता है. किसी भी डॉक्टर के पास कोई रिक्वेस्ट लेकर आए कि सर मुझे पोस्टमार्टम नहीं कराना है, तो आंसर यही होना चाहिए कि मेरा काम पोस्टमार्टम करना या ना करना नहीं है. पुलिस का काम है ये देखना कि उसे पोस्टमार्टम चाहिए या नहीं. वो अगर हमें नहीं कहेगी तो हम पोस्टमार्टम नहीं करेंगे. दिस इज एज सिंपल एज अ क्लिनिकल केस दैट इज बीइंग एग्जामिन्ड. तुम्हारे पास कोई पेशेंट आएगा तभी तुम उसे एग्जामिन करोगे, वो कहेगा तभी तुम ऑपरेट करोगे. अपने आप से तो कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को ना एग्जामिन करेगा ना उसे ऑपरेट करेगा. वैसे ही अपने आप से कोई डॉक्टर किसी भी डेड बॉडी को कभी भी एग्जामिन करके या पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन नहीं करेगा. पोस्टमार्टम के अंदर उसके पास एक रिटर्न लेटर होना चाहिए पुलिस की तरफ से या मजिस्ट्रेट की तरफ से कि ये डेड बॉडी हम आपको फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसका आप हमें पोस्टमार्टम करके दीजिए. अगर हमारे पास ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं आती है तो हमें कोई पोस्टमार्टम करना ही नहीं है. फाइनल रिपोर्ट वंस final report of the postmortem is then to be forwarded to the magistrate. This is being done by the police officer and not by the doctor. पुलिस का काम पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट वापस पुलिस ऑफिसर को ही देनी है. डॉक्टर को वो रिपोर्ट रिलेटिव को भी नहीं देनी है. पोस्टमार्टम इज बीइंग आस्क्ड बाय पुलिस और मजिस्ट्रेट and the report is being given back to police or magistrate whosoever has asked. अगर पुलिस ने पीएम कराया है तो उस केस में भी रिपोर्ट कंसर्न मजिस्ट्रेट को तो फॉरवर्ड की ही जाती है. नेक्स्ट आएंगे हम मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट के ऊपर. नाउ द प्रोसीजर फॉर ए मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट इज आल्सो द सेम. वहां पर जो काम पुलिस कर रही है वो मैजिस्ट्रेट जाके करता है. वो जगह पे जाएगा, इंक्वायरी करेगा, रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, और वो भी इंक्वेस्ट पंचनामा ही कहलाता है. उसमें लास्ट में पुलिस की जगह मैजिस्ट्रेट का सिग्नेचर होता है और दो पंच होते हैं. अभी मैजिस्ट्रेट कितने तरह के होते हैं थोड़ा वो भी देख लेते हैं. यूजुअली वी हैव, जो हमारा लीगल स्ट्रक्चर है उसमें दो तरह के मजिस्ट्रेट हैं, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स और एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट. जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स वो हैं जो लॉ में ट्रेन है और जो जजमेंट्स डिलीवर करते हैं, जिन्हें हम कोर्ट. एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स डू यूजुअली डोंट सिट इन कोर्ट, दे सिट इन ऑफिसेस. जैसे कलेक्टर ऑफिस है वैसे ही गवर्नमेंट के जो ऑफिसेस होते हैं वहां पर यूजुअली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स बैठते हैं. उनकी ट्रेनिंग यूजुअली लॉ में नहीं होती है एंड दे हैव ड्यूटीज मोर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर. So these judicial magistrates are the one who preside over the courts, जिसे हम रेगुलरली मूवीज में देखते हैं. या अगर तुम अभी आए और उसके बाद सिचुएशन ऐसी है कि हम तुम्हें कोर्ट ले जा सके तो वी विल टेक यू टू द कोर्ट आल्सो. But broadly, there are two types of magistrates. One is a judicial magistrate, one is an executive magistrate. A judicial magistrate's inquest, if you look at the heading, it refers to an investigation done by a judicial magistrate. Now, magistrate's inquest, किन केसेस में पुलिस की जगह मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट करेगा वो सेक्शन 176 सीआरपीसी में लिस्टेड है. पुलिस इंक्वेस्ट इज लिस्टेड इन सेक्शन 174 ऑफ सीआरपीसी. 176 में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट किन कंडीशंस में इंक्वेस्ट करेगा या इंक्वायरी करेगा
उसमें क्लियर लिखा है इट विल डू इन केस ऑफ डेथ और डिसअपियरेंस ऑफ ए पर्सन इन कस्टडी। पुलिस कस्टडी में किसी की डेथ हो जाए या कस्टडी में लेने के बाद आदमी गायब हो जाए, ठीक है। तीसरी चीज, इफ देयर इज एन एलिगेशन ऑफ रेप व्हाइल ए पर्सन इज इन, और भी तीन चार ऑप्शन हैं। जुवेनाइल होम्स में अगर किसी की डेथ हो जाती है या वहां से कोई गायब हो जाता है, कोई साइकेट्रिक होम में से गायब हो जाता है, कोई जेल में से गायब हो जाता है, और कोई पुलिस कस्टडी में से गायब हो जाता है। जेल और कस्टडी, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। आज किसी ऑफेंस में पुलिस मुझे घर से पकड़ के ले गई, दैट मीन्स आई एम नाउ इन पुलिस कस्टडी। उसके बाद मैजिस्ट्रेट मुझे कस्टडी में ही रखता है पुलिस के पास, या मुझे ऑफिशियल जो जेल्स बनी है उसमें ट्रांसफर करता है, देन आई एम कंसिडर टू बी समबडी इन जेल। तो किसी का भी डेथ या डिसअपियरेंस होता है पुलिस कस्टडी में या साइकेट्रिक होम में, जुवेनाइल होम्स में, या देयर इज एन एलिगेशन ऑफ रेप बिफोर सच डिसअपियरेंस और डेथ, इन सारे केसेस में इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही करता है। नेक्स्ट इज व्हेन एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट विल डू एन इंक्वेस्ट। हियर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स आर गुड नंबर इन ईच डिस्ट्रिक्ट। कोई लिमिट नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द वर्कलोड गवर्नमेंट विल अपॉइंट नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, ठीक है। इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं। देयर कैन बी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, it can be at sub divisional level, it can be at a तहसील level where it is called as तहसीलदार। तो किस एरिया में किस लेवल पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया गया है, उस तरह से उसका अलग अलग नाम होगा। These executive magistrates will conduct an inquest or an inquiry if there is death of a woman। किसी भी फीमेल की डेथ होती है either by suicide or it appears to be an unnatural death happening within 7 years of marriage and there is an allegation of dowry। किसी भी लड़की की शादी की 7 साल के अंदर एक सुसाइडल डेथ है या एक सस्पिशियस अननेचुरल डेथ है, और ऐसा एलिगेशन किया जाता है कि उस लड़की को डाउरी के लिए परेशान किया जा रहा था, ऐसी हर डेथ का इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरीली एक मजिस्ट्रेट ही करेगा। उसे पुलिस इन्वेस्टिगेट कभी भी नहीं करेगी। This is given in section 176 of CRPC. Second case where an executive magistrate will do an inquest is what is called as exhumation. I'm not sure how many of you know the meaning of this word. Exhumation is कि आज मैंने किसी को मार दिया, मारने के बाद मैंने उसकी बॉडी जमीन में दफना दी। कल को किसी ने कंप्लेन करी, कंप्लेन करने के बाद वो जमीन खोद के डेड बॉडी बाहर निकाली गई और उसका इन्वेस्टिगेशन किया गया। तो जो ये कंप्लेन करने के बाद डेड बॉडी को जमीन में से खोद के निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्सह्यूमेशन। इफ यू टॉक इन इंग्लिश, इट्स डिगिंग आउट ऑफ एन ऑलरेडी बरीड डेड बॉडी। ऐसा कोई केस आता है, वहां पर इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी हमेशा मजिस्ट्रेट ही करेगा, पुलिस नहीं करेगी। कस्टडी में कोई डिसअपियरेंस या डेथ है, फीमेल की विद इन 7 years है, एक्सह्यूमेशन है, इन सब में पुलिस कभी भी इंक्वेस्ट नहीं करती है। बिफोर प्रोसीडिंग टू समथिंग एल्स, एक चीज और हमेशा ध्यान रखनी है, मैजिस्ट्रेट के पास इंक्वेस्ट करने के 3-4 बड़े रीजंस हैं। इसके अलावा बाकी सब केसेस में पुलिस ही इंक्वेस्ट करती है, लेकिन 176 CRPC permits magistrate to do an inquest in all those cases also where police is supposed to do inquest। तो routinely अगर पुलिस कोई इन्वेस्टिगेट कर रही है तो उसका जो कंसर्न मैजिस्ट्रेट है वो इंक्वायरी खुद भी कर सकता है, लेकिन जिन केसेस में मैजिस्ट्रेट को ही इंक्वेस्ट करनी है वहां पुलिस कभी भी इंक्वायरी नहीं कर सकती है। दिस इज क्लियरली गिवन इन द लॉ। हमारे यहाँ पे आज की तारीख में इंडिया में दो ही तरह की इंक्वेस्ट है, एक पुलिस है या मैजिस्ट्रेट है। किसी भी डेथ का इन्वेस्टिगेशन होगा तो या तो पुलिस करेगी उसे इन्वेस्टिगेट या मैजिस्ट्रेट करेगी। किताबों में कुछ चीजें बरसों से लिखी आ रही हैं, तो जस्ट तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दें, पहले एक तरह का सिस्टम था कोरोनर सिस्टम।
हमारे यहाँ पे ये 78 में कलकत्ता में खत्म हो गया और 99 में जुलाई मुंबई में खत्म हो गया। सो 99 के बाद इंडिया में कोरोनर सिस्टम भी नहीं बचा है। 1999 तक इफ एनी वन ऑफ देयर वाज दिस कोरोनर सिस्टम प्रैक्टिस इन मुंबई, आप लोगों में से कभी भी किसी को जेजे हॉस्पिटल या ग्रांट मेडिकल कॉलेज जाना हुआ तो वहां पे आप जाकर देख सकते हो, वो कोरोनर का जो ऑफिस है वो अभी भी इंटैक्ट रखा हुआ है, इंटैक्ट है वहां पे। That was where it was being, the inquiry was being conducted by till 1999. So that office, when I last saw it, it was there in JJ. So if any time you happen to visit that hospital, you can see that where coroner used to sit. हमारे यहाँ पे ये फॉलो नहीं होता है। एक प्रोक्यूरेटर फिजिकल सिस्टम है, कुछ कंट्रीज में इस नाम से जानते हैं, और एक मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम है। दिस वाज व्हाट आई टोल्ड यू लास्ट टाइम। If anybody of you finds this subject interesting and wants to pursue a career, best is to go to US and become a medical examiner. Medical examiner is somebody who is qualified in both legal systems as well as medicine. मेडिकल एग्जामिनर में क्या होता है कि वो खुद ही इन्क्वेस्ट करता है, खुद ही पोस्टमार्टम करता है, बिकॉज ही इज ट्रेन्ड इन इन्वेस्टिगेशन। जो काम या पुलिस या मजिस्ट्रेट करती है वो भी वो मेडिकल एग्जामिनर ही करता है, और फिर वो ही उस बॉडी का पोस्टमार्टम भी करता है। आज की तारीख में यूएस में काफी प्रेवलेंट है, एंड इट्स अ वेरी हाईली पेड जॉब एंड a highly respected job in US. So instead of working here, somebody who is really interested can take up this medical examiner post in US after passing your MBBS degree. This was in short about how an inquiry or investigation into a death is being done. Next, we will see something about the various courts of law in our country. हमारे देश में कितने तरह की कोर्ट हैं, उनकी क्या पावर्स हैं, और किस कोर्ट में कौन से केसेस ट्रायल पे जा सकते हैं। सपोज somebody of you might be thinking कि हमें क्या जरूरत है ये जानने की, तो पॉइंट इज कि कल को हम में से कोई भी इस कोर्ट के अंदर लैंड अप हो सकता है। एज एन एक्यूज भी हो सकता है और एज ए एक्सपर्ट विटनेस भी हो सकता है, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू बिकम डॉक्टर्स। So someday or the other, you may be asked to go to the court and depose for your patient. So we should know what are the various different types of courts, and if we are called to those courts, what should be our behavior and how we should act. We'll start with the topmost one. फर्स्ट क्लास में हमने देखा था दो तरह के केस होते हैं, वन इज अ सिविल केस, वन इज अ क्रिमिनल केस। So the courts which try civil cases are civil courts. Courts that try criminal cases are criminal courts. यूजुअली हम एविडेंस देने के लिए क्रिमिनल कोर्ट्स में ही बुलाए जाते हैं। यूजुअली वी डोंट एंड अप इन सिविल कोर्ट्स। सारा फोकस विल बी ऑन द क्रिमिनल कोर्ट्स। हायरार्की देखेंगे तो इंडिया में टॉप मोस्ट कोर्ट इज द सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आती है हाई कोर्ट, उसके बाद आते हैं सेशंस कोर्ट, और उसके बाद आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स कोर्ट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के कोर्ट्स नहीं होते हैं, दे आर ओनली पीपल हु डू इंक्वायरी, बट दे डोंट हैव a formal court system to offer any or to give any judgment. The power of judgment is lying with the judicial magistrates only. सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इट इज द टॉप मोस्ट और एपेक्स कोर्ट इन द कंट्री। इसके ऊपर कुछ भी नहीं, इसके ऊपर एक ही है और वो है प्रेसिडेंट, हु हैज द पावर टू कम्यूट अ डेथ सेंटेंस। अदरवाइज जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट is the final judgment and it has to be abided. Supreme Court is presided by Chief Justice of India, and President has the power to appoint the Chief Justice. Procedure may be something else, but appointment is being issued by President of India for Chief Justice of Supreme Court of India. Powers की बात करें तो 131 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन है, it provides its original jurisdiction for certain areas, but mostly it has got an appellate
jurisdiction. Appellate means lower court के decision के against में appeal करना हो तो usually Supreme Court entertains those cases. Original jurisdiction के कुछ instances हैं, उन cases में low dispute है तो it will go to Supreme Court only. This is just one example. ऐसे बहुत सारे cases हो सकते हैं जहां पे डायरेक्टली पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकती है, लोअर कोर्ट्स में नहीं जा सकती है. वो जितने भी इंस्टेंसेस हैं, दे आर ऑल गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इट हैज गॉट an appellate jurisdiction and the decisions are binding to all the lower courts. सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन देता है वो नीचे की कोर्ट्स को बाइंडिंग होता है. दैट मींस दे हैव टू फॉलो दोस डिसीजन. लास्ट लाइन है एनी केस एनी सेंटेंस. सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू हियर एनी केस इन द होल कंट्री, either as an original case or as an appellant case. And हमने पिछली बार जो 5 तरह के पनिशमेंट्स देखे थे, इसके पास पावर है कि उनमें से 5 में से कोई भी पनिशमेंट वो अवॉर्ड कर सकती है. हर एक कोर्ट के पास ये पावर नहीं होती है. नेक्स्ट आते हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो वो है हाई कोर्ट. हाई कोर्ट आर द हाईएस्ट जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स इन अ स्टेट. जैसे कंट्री में हाईएस्ट ट्रिब्यूनल सुप्रीम कोर्ट है, वैसे स्टेट के अंदर हाईएस्ट ट्रिब्यूनल इज द हाई कोर्ट. These high courts are usually situated in the capitals of each state. Ideally, practically ऐसा नहीं है. देख, we will see to it. इतने exceptions हैं. नॉर्थ ईस्ट की 7 स्टेट्स के लिए एक ही हाई कोर्ट है और वो गुवाहाटी में है. और द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दादरा नगर हवेली और दीव, इन चारों जगह के लिए एक ही हाई कोर्ट है और वो मुंबई में. छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है लेकिन उसके हाई कोर्ट बिलासपुर में. यूपी की कैपिटल लखनऊ है लेकिन उसकी हाई कोर्ट इलाहाबाद में है. गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, हाई कोर्ट अहमदाबाद में है. केरला की कैपिटल त्रिवेंद्रम है, हाई कोर्ट एर्नाकुलम में है. मध्य प्रदेश भोपाल की जगह जबलपुर में है. उड़ीसा भुवनेश्वर की जगह कटक में है. राजस्थान में जयपुर की जगह जोधपुर में है और उत्तराखंड में वो नैनीताल में है. तो even though we say that it should be there in the capital of each state, these are the exceptions where they are not in the capital of their respective state. ये शायद कोई तुमको एमसीक्यू में पूछ सकता है. हाई कोर्ट इज प्रेसिडेंट बाय चीफ जस्टिस और उस चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के थ्रू ही होता है. पावर्स, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है वैसे हाई कोर्ट के पास भी सेम पावर्स है. It can try any case and it can pass on any sentence. It is the court of appeal for a decision by a sessions court. Sessions court district में होता है. डिस्ट्रिक्ट में अगर सेशन कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है और किसी को उसके अगेंस्ट अपील करनी है तो उसे हाई कोर्ट ही जाना होगा. सेशन कोर्ट से सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते. सेकेंड, सेशंस कोर्ट में अगर किसी को डेथ सेंटेंस दिए, मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर केस चला, उसमें एक्यूज को डेथ सेंटेंस दिया है, तो सेशंस कोर्ट का डेथ सेंटेंस तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक हाई कोर्ट उसे रिव्यू नहीं करेगा. तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर किसी को फांसी की सजा दी गई है तो वो एग्जीक्यूट तभी होगी जब तक हाई कोर्ट उस पूरे केस को स्टडी करके वो जजमेंट को अप्रूव नहीं करता है. तो दीज आर द पावर्स ऑफ हाई कोर्ट. कोई भी केस देख सकता है, कोई भी सेंटेंस कर सकता है, बट लोअर कोर्ट्स के डेथ सेंटेंस को इट हैज टू कंफर्म. अब आया सेशंस कोर्ट. यही वो कोर्ट है जहां हम शायद तुम्हें कभी ले जा पाएंगे. हर डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट अथॉरिटी इज अ सेशंस कोर्ट. कंट्री में हाईएस्ट कोर्ट इज सुप्रीम, स्टेट में हाईएस्ट कोर्ट इज हाई कोर्ट और हर डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट कोर्ट इज ए सेशंस कोर्ट. The person who presides over the sessions court is called as the principal district and a sessions judge, जिसका अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट करता है. तो डिस्ट्रिक्ट में जो हाईएस्ट जज है उसका अपॉइंटमेंट उस स्टेट का हाई कोर्ट करता है.
देर कैन बी मल्टीपल सेशंस कोर्ट। हाई कोर्ट हमेशा एक ही होगा एक स्टेट में, सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है। पर डिस्ट्रिक्ट में देर कैन बी मल्टीपल सेशन कोर्ट्स डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ केसेस। अगर एक ही सेशन कोर्ट रखेंगे तो जितने केसेस हैं वो कभी भी ट्रायल पे जाएंगे ही नहीं। इसलिए हर डिस्ट्रिक्ट में केसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि हाई कोर्ट कितने सेशंस कोर्ट क्रिएट करता है। सपोज एक डिस्ट्रिक्ट में 10 सेशंस कोर्ट बनाए गए हैं, तो 10 सेशंस कोर्ट में 10 प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट नहीं होंगे। आउट ऑफ 10, 1 कोर्ट विल बी प्रिसाइडेड बाय द प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज। रेस्ट 9 विल बी एडिशनल सेशन जज। उनकी पावर तो सेशन जज की ही होगी, बट दे विल बी प्लेस्ड अंडर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशंस जज। तो हर डिस्ट्रिक्ट में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज तो एक ही होगा। Depending upon the need, number of sessions court can be increased and additional judges can be appointed. In sessions court में there can be other level of courts which are presided by assistant sessions judges. They work under these additional or the principal sessions judge. इनकी पावर्स थोड़ी कम होती है। वो केसेस जिसमें एक लिमिटेड सजा है उसको असिस्टेंट सेशन जज ही ट्रायल पे ले जा सकता है। जिन केसेस में वो सजा है जो एक डिस्ट्रिक्ट जज ही दे सकता है, वो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशंस जज या एडिशनल सेशंस जज के पास ही जाएंगे। अब हम पावर्स देख लेते हैं। एक प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशंस जज है, इट कैन अवॉर्ड एनी सेंटेंस एंड इवन डेथ सेंटेंस। सेम पावर्स हैं एडिशनल सेशंस जज के पास, ही कैन पास एनी सेंटेंस इंक्लूडिंग डेथ सेंटेंस। और उसके नीचे के जो कोर्ट हैं जिनमें असिस्टेंट सेशंस जज प्रिसाइड करते हैं, वो वही केस ट्रायल पे ले सकते हैं जिसमें 10 साल से ऊपर की सजा नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि उनके पास 10 साल से ऊपर इम्प्रिजनमेंट की पावर ही नहीं। दे विल ट्राई ओनली दोज केसेस जहां मैक्सिमम पनिशमेंट 10 इयर्स इम्प्रिजनमेंट ही हो सकता है। सो सेशंस जज either district or additional, anyone with death sentence. Assistant sessions judge, it will have only cases where punishment can be only up to 10 years of imprisonment. सेशंस जज हो गया, एडिशनल सेशंस जज हो गया, इसके नीचे भी और कोर्ट्स होती हैं विच आर कॉल्ड एज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट आर प्रेसिडेड बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। इनकी रैंक असिस्टेंट सेशन से नीचे होती है। अभी अगर सपोज 5 सेशंस कोर्ट है, 10 असिस्टेंट सेशंस कोर्ट है, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 10 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 15 भी हो सकती हैं। नंबर डिपेंड करता है कि उस डिस्ट्रिक्ट में केसेस कितने हैं जिनको की ट्रायल पे लेना है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स की भी रैंक अलग अलग होती है। द हाईएस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का रैंक है दैट इज चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। उसके नीचे होता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और उसके नीचे होता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ये सब कैटेगरीज बनाई गई हैं पनिशमेंट कितना अवॉर्ड किया जा सकता है उसके बेसिस पे। सबकी अलग अलग पावर्स हैं। फायदा ये है कि इससे केसेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें पनिशमेंट कितना मिलेगा। जिनमें बहुत कम पनिशमेंट है वो केसेस विल बी ट्राइड बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। जो पावर सेकंड क्लास के पास नहीं है पर फर्स्ट क्लास के पास है, उतने केसेस वो ही फिनिश ऑफ कर सकता है। जो पावर चीफ मजिस्ट्रेट के पास है वो ही उसके पास जाएंगे एंड ही कैन डिस्पोज ऑफ ऑल दो केसेस। द पर्पस इज दैट ऑल द केसेस डोंट रीच टू ए सेशंस जज। इनकी पावर्स भी हम देख लेते हैं। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, वो कितने भी अमाउंट का फाइन दे सकता है बट इम्प्रिजनमेंट 7 साल से ऊपर नहीं दे सकता। तो वो वही केस ट्राई करेगा जिसका पनिशमेंट 7 साल या 7 साल से नीचे है। फर्स्ट क्लास वाला वही केस ट्राई करेगा जहां 3 साल तक की सजा दे सकता है या 10,000 रुपए तक का फाइन दे सकता है। इसके अलावा ऐसा कोई केस है जिसमें 3 से ऊपर की सजा भी दी जा सकती है या फाइन 10 से ऊपर दिया जा सकता है, वो जीएमएफसी के पास नहीं जाएगा। सेकेंड क्लास
it will try only those offenses where punishment is up to a year or maximum fine is 5,000 rupees. So depending upon what is the punishment for different cases, these are the different levels of judges who try over these cases. एज ए डॉक्टर हम कभी भी सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हैं, फर्स्ट क्लास के पास भी जा सकते हैं, चीफ जुडिशियल के पास भी जा सकते हैं, असिस्टेंट सेशंस के पास भी जा सकते हैं और सेशंस कोर्ट में भी जा सकते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन कि हम किस केस के अंदर एज ए विटनेस बुलाए गए हैं. Inquest, a short note or full question in exam. Powers of court, again it can be a full question or a short note in exam. अभी तक हमने कोई डेथ में इन्वेस्टिगेशन देख ली, फिर हमने देख लिया कि कितनी तरह के कोर्ट्स हैं जहां पे वो केसेस ट्राई हो सकते हैं. अब तीसरी चीज जो हमारे काम की है कि कल को किसी डेथ के अंदर इन्वेस्टिगेशन में हमें इनमें से किसी कोर्ट में अगर बुलाया जाएगा तो उसका प्रोसीजर क्या है, हमें बुलाने का प्रोसीजर क्या है और हम वहां जाएंगे तो हमें एग्जामिन करने का प्रोसीजर क्या है. दैट इज व्हाट वी विल सी नेक्स्ट इन एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ. कोर्ट को मुझे बुलाना है किसी केस के अंदर तो उसके लिए वो मुझे एक ऑर्डर इश्यू करेगी राइटिंग. उस राइटिंग वाले ऑर्डर को कहते हैं समन्स या सबीना. समन से मीनिंग क्लियर नहीं होता है. सबीना मीन्स दैट दिस इज that this whole thing has been issued under penalty. कि जो आपको कागज कोर्ट ने भेजा है वो अंडर पेनल्टी है, मीनिंग कि अगर आपने इसको नहीं माना तो आपके खिलाफ इंक्वायरी की जाएगी. इंक्वायरी नहीं की जाएगी, आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है. सो द पॉइंट इज व्हेन a court issues a summons, one is expected to obey that summons. Summons in simple terms is a document that asks a person to go to a court of law and give an evidence. तो कल किसी भी केस में आपको कोर्ट आपके पेश किए हुए पेशेंट्स के ट्रीटमेंट या एग्जामिनेशन में कोर्ट में आकर एविडेंस देने के लिए कहती है तो वो आपको एक रिटर्न ऑर्डर इश्यू करेगी. उस रिटर्न ऑर्डर को सबीना या समन्स कहते हैं. सेकेंड थिंग इज कंडक्ट मनी. थर्ड इज विटनेस. फोर्थ इज एविडेंस टाइप्स. फिफ्थ इज एक्सेप्शन. एंड सिक्स्थ इज प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग. इतनी चीजें हैं जो हम एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आगे देखेंगे. Definition summons key you can see now on your screen. It's a document compelling attendance of a person as witness in court of law under penalty. मतलब नहीं जाओगे तो पनिशमेंट मिलेगा. On a particular day, date and time for giving evidence. एक स्पेसिफिक दिन पे या डेट पे और टाइम पे आपको एविडेंस देने कोर्ट में जाना है. हमको जैसे समन्स मिलता है तो हमें 31 जनवरी को सुबह 10:30 बजे फिक्स्ड कोर्ट के अंदर जाकर एविडेंस देना है. ऐसा सब उसके अंदर लिखा होता है. देखेंगे हम आगे, एक फोटोग्राफ है इसके अंदर. तो समन्स दो तरह के होते हैं. वन इज कॉल्ड एज सबीना एट टेस्टिफिकेंडम एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज सबीना ड्यूसिस टिकम. सबीना एड टेस्टिफिकेंडम का मीनिंग है कि मुझे कोर्ट में जाकर के ओरली एविडेंस देना है. वहां पे उनसे जो पूछेंगे मुझे उसके जवाब देने हैं और मुझे मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो सकता है. क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है कि नहीं, इसकी भी वेरिफिकेशन होगी. सेकेंड इज सबीना ड्यूसिस टिकम. इस ये जो समन्स है ये सिर्फ इतना कहता है कि आप अपना मेडिकल रिकॉर्ड या कोई और डॉक्यूमेंट इस तारीख को कोर्ट में आके जमा कर दो. अगर आपको ओरली एविडेंस देना है तो इट इज द फर्स्ट वन. और कोर्ट में जाकर के कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना है तो इट इज द सेकंड वन, दैट इज सबीना ड्यूसिस टिकम. वो समन्स में लिखा होता है कि आपको ओरली आकर जुबानी देनी है या आपको वहां आकर के कोई कागज जमा करना है. समन्स हमेशा डुप्लीकेट में इश्यू होता है. कोर्ट जब भी आपको बुलाने के लिए समन्स निकालेगी या कागज निकालेगी तो वो दो कॉपी में होगा. आपके पास भी दो कॉपी आएंगी. एक पे आप साइन करोगे और एक कॉपी आप अपने पास साइन करोगे और वापस भेज दोगे.
और एक कॉपी आप खुद रख लोगे। आपने एक बार कॉपी पे साइन करके वापस जमा कर दिया, मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि अब आप इस समन्स को ओबे करेंगे। अभी बहुत सारे प्रोसीजर्स लिस्टेड हैं जिसमें हम किसी को समन्स सर्व कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार कोई आदमी आपको कागज देने ही आएगा। आइडियली वही प्रोसीजर है कि कोर्ट से कोई आपको कागज देने आएगा, आप कागज को पढ़ोगे, दूसरी कॉपी में आप साइन करोगे, डेट डालोगे, टाइम डालोगे, वो कॉपी कोर्ट का जो लड़का आया है वो कॉपी वापस लेके जाएगा और वहां पे जमा कर देगा। दैट विल बी एन एविडेंस दैट द समन्स हैज बीन सर्व। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं। डायरेक्टली बाय हैंड थ्रू पुलिस और कोर्ट पर्सन, कॉमनेस्ट वन। सेकंड इज इट कैन बी गिवन टू एनी मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। कोर्ट से जो आदमी आया है वो डॉक्टर स्वप्निल के नाम पे समन्स लाया है। डॉक्टर स्वप्निल छुट्टी पे हैं, बाहर घूमने गए हैं, तो मेरे घर में कोई भी मेल मेंबर होगा वो कॉपी उसको भी देगा, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज द समन्स हैज बीन सर्व्ड। ऐसा नहीं है कि जब मैं छुट्टी से आऊंगा तभी मुझे वो कागज दिया जाए। मेरे घर में कोई मेल मेंबर है, वो भी ऑथोराइज्ड है समन्स को रिसीव करने के लिए। एक बार उसने समन्स रिसीव किया मतलब वो मैंने ही रिसीव की। अगर पॉसिबिलिटी नहीं है हैंड टू हैंड देने की, तो कोर्ट के पास रजिस्टर्ड पोस्ट से समन्स भेजने की पावर है। इट कैन ऑल्सो सर्व इट थ्रू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ऐसे इंस्टेंस होते हैं कि लोग समन्स लेते ही नहीं, गायब हो जाते हैं, भाग जाते हैं, पुलिस वाले को भगा देते हैं। कोर्ट के पास बहुत सारे तरीके हैं। आप जहाँ जॉब करते हो वहां के हेड ऑफ इंस्टीट्यूट को या हेड ऑफ डिपार्टमेंट को समन सर्व कर सकते हैं, मेकिंग हिम बाइंडिंग कि वो आपको कोर्ट भेजे। तो आप नहीं रिसीव करोगे तो आपका बॉस भी रिसीव कर सकता है। अगर आप किसी और शहर में रहते हो, ठीक है, तो वहां के मजिस्ट्रेट या पुलिस स्टेशन के थ्रू भी आपको समन सर्व किया जा सकता है। और अगर कोई समन्स लेना ही नहीं चाहता है, वो सारे तरीके अपना चुका है कि मुझे समन्स मिले ही नहीं, तो कोर्ट के पास ये पावर है कि आप जिस घर में रहते हो उस घर के दरवाजे पे वो कागज चिपका देंगे, और वो एक बार कागज आपके घर के दरवाजे पे चिपक गया मतलब कि आपको समन्स सर्व हो गया। और समन्स सर्व होने का मतलब ये है कि अगर उसको ओबे नहीं किया तो आपको कोर्ट पनिश करेगी। तो इतने तरीके तो हमें जानने चाहिए कि जो यूज किए जा सकते हैं। जान के नटशेल में इन्फ्रेंस यही है कि जब भी समन्स आता है तो उसे चुपचाप ले लेना चाहिए, नहीं तो वो किसी और तरीके से सर्व हो जाएगा। अब समन्स में क्या लिखा होता है? उस कोर्ट का नाम होता है जहां से आपको बुलाया गया है, उस केस का नंबर होता है जिसमें आपको जाके एविडेंस देना है, पुलिस स्टेशन की एंट्री नंबर होगा सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई द केस, उस आदमी का नाम और पता जिसे समन किया जा रहा है, एक्यूज का नाम भी होता है, इसके खिलाफ ये केस चल रहा है। किस तारीख को कहां पर कितने बजे पहुंचना है वो भी समन्स के अंदर लिखा होता है, ठीक है। नीचे कोर्ट के ऑफिस सुपरिटेंडेंट की सिग्नेचर होती है और कोर्ट का सील होता है। हर जानकारी होती है जो आपको हेल्प करे पेपर्स लेके टाइमली पहुंचने के लिए। मिल गया समन, नहीं गए, ऐसा बहुत लोग करते हैं। या तो समन लेते ही नहीं है, और अगर ले भी लिया या आपके घर के दरवाजे पे चिपका दिया पर फिर भी नहीं जाओगे तो कोर्ट क्या पनिशमेंट दे सकती है। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबीना, दैट इज अंडर पेनल्टी। कोर्ट का समन नहीं माना तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट देने के लिए बुलाया गया है और आप नहीं जाते हो, तो अगेन 6 महीने तक की आपको जेल हो सकती है, या 1,000 रुपए का फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकता है। आपको कोई सामान प्रोड्यूस करने के लिए बुलाया गया था, डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है, यू आर आस्क्ड टू सब प्रोक्योर एंड प्रोड्यूस अ थिंग और एन ऑब्जेक्ट, जो आपने कोर्ट में जाके नहीं दिया, तो 7 दिन की समन्स न लेने के लिए गायब हो गए, ठीक है, तो जब पकड़े जाओगे तो 6 महीने की सजा और फिर वापस 1,000 रुपए का फाइन, या दोनों हो सकता है। और समन्स ले लिया,
फिर भी नहीं गए, ठीक है, तो कोर्ट के पास पावर है, इट कैन इशू एन वारंट ऑफ अरेस्ट. Warrant of arrest can be bailable or it can be a non-bailable one. Difference is warrant of arrest कि आपको पुलिस आएगी और पकड़ के ले जाएगी ना, पुलिस आके पकड़ के ले जाएगी, उसमें दो डिफरेंट सब हेडिंग्स हैं, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल. बेलेबल में ऐसा होता है कि अरेस्ट वारंट जब इशू होता है और उस पर अगर बेलेबल लिखा होता है तो उस पर एक अमाउंट लिखी होती है. इट कैन रेंज फ्रॉम 500 to 1000 to 2000, वॉट एवर द कोर्ट फील्स. बेलेबल वारंट यूजुअली जिसको या उसका हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, उसको ये ऑर्डर किया जाता है कि अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसे पकड़ के कोर्ट में प्रोड्यूस करो. अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारे खिलाफ इतना फाइन लगाया जाएगा. सो द व्हाट यू से authority to bring a person to court is on somebody else, and if that person fails to do that, he will be given the fine. अगर कोर्ट को लगता है कि अभी ये चीज भी काम नहीं करेगी तो इट विल इश्यू ए समथिंग कॉल्ड एज ए नॉन बेलेबल वारंट. नॉन बेलेबल वारंट का मतलब है कि कंसर्न पुलिस स्टेशन से आदमी आएगा, जिसके अगेंस्ट में नॉन बेलेबल वारंट है उसको घर से ऑफिस से पकड़ेगा और उठा के कोर्ट में खड़ा कर देगा. कभी भी नॉन बेलेबल वारंट इश्यू होता है तो कोर्ट में रख खड़ा करने के बाद जज के पास पावर है कि वो आपको क्या पनिशमेंट दे. That actually is a very bad thing and we should try and avoid to go reach a court when somebody comes with a non-bailable warrant. दूसरा एक 100 रुपए का फाइन है, that is actually immaterial. The point is once a warrant is issued, it is best that you go by self to the court and don't force somebody else to pick you up and take you to the court. Okay? So if somebody fails to obey the summons, these are the things that can be done by the existing laws. अभी कई बार ऐसा होता है कि एक ही दिन और एक ही समय के किसी के पास दो समन्स आ जाते हैं. ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है और हमारे साथ ये सब बहुत बार हुआ है. एक नहीं 3-4 कोर्ट के समन्स एक ही दिन के लिए आ गए, सुबह 10:30 बजे के लिए. तो अब हम एक साथ तो 4 जगह नहीं पहुंच सकते. ऐसे में हमारे पास क्या रेमेडी अवेलेबल है? फर्स्ट इज हमें देखना चाहिए कि वारंट सिविल केस से आया है कि सिविल कोर्ट से आया है कि क्रिमिनल कोर्ट से आया है. अगर मेरे पास दो समन्स हैं एक ही दिन एक ही टाइम के, एक सिविल कोर्ट का है एक क्रिमिनल कोर्ट का है, तो सेकंड वन को हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है. क्रिमिनल कोर्ट्स हैव ए प्रेफरेंस ओवर सिविल कोर्ट. आपको क्रिमिनल कोर्ट का केस अटेंड करना है और सिविल कोर्ट को इंटीमेट करना है कि मैं आपके पास किसी और दिन आऊंगा क्योंकि मैं इस समय क्रिमिनल कोर्ट में एविडेंस दे रहा हूं. इसको वो लोग डिसओबेइंग नहीं माने. अब दोनों ही क्रिमिनल कोर्ट के हैं या दोनों ही सिविल कोर्ट के हैं, दो समन्स हैं एक ही दिन एक ही टाइम के और दो कोर्ट अलग अलग हैं, क्रिमिनल और सिविल. तो आपको देखना है कि कोर्ट का लेवल क्या है. अब यहां पर आएगा सेशंस जज है, असिस्टेंट सेशंस जज है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है. अगर उनका लेवल अलग अलग है तो जो हायर लेवल पर है आपको वो कोर्ट को पहले अटेंड करना है. तो असिस्टेंट सेशंस का और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट का, सो गो टू एन असिस्टेंट मजिस्ट्रेट्स कोर्ट, इन्फॉर्म द सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट दैट आई एम इन असिस्टेंट सेशन जज कोर्ट. सपोज दोनों एक ही लेवल के हैं, एक ही दिन एक ही टाइम, दोनों असिस्टेंट सेशन जज हैं अलग अलग. इसमें क्या करेंगे? इसमें सिंपल सा रूल है कि जिस कोर्ट से पहले समन रिसीव हुआ था उस कोर्ट को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी. एक कोर्ट का समन 8 तारीख को मिला था, एक कोर्ट का समन 9 तारीख को मिला था, दोनों ही असिस्टेंट सेशन से 15 तारीख के लिए. तो जिससे समन्स 8 तारीख को मिला था उस कोर्ट में जाएंगे
जिससे समन्स 9 तारीख को मिला था, उसको इंटीमेट करना है कि आई एम एट समवन एल्सेस कोर्ट, उसको काइंडली गिव मी अनदर डेट। इसके अंदर फेलियर टू ओबे नहीं माना जाता है, बट यू हैव टू इन्फॉर्म द रेस्पेक्टिव कोर्ट। नेक्स्ट इज, क्या कोर्ट अटेंड करने के कुछ पैसे मिलते हैं? अब आप घर से कोर्ट जाओगे तो कुछ तो एक्सपेंस होगा, एटलीस्ट मिनिमम ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस हो, ट्रैवलिंग एक्सपेंस होगा। और अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस करते हो तो आपके 2 घंटे की प्रैक्टिस भी जाएगी। तो क्या ऐसा है कि हमको उसके लिए कोई कॉम्पनसेशन मिलता है या एक्सपेंसिव मिलते हैं? There is a provision. The provision is called as conduct money. It is the money paid to a witness to meet his expenses for attending the court. कोर्ट में ये प्रोविजन है कि कोर्ट में आने और जाने के लिए आपका जो खर्चा हुआ वो कोर्ट रीइंबर्स करता है। इट इज ओनली द ट्रेवल एक्सपेंसेस। सिविल केस है या क्रिमिनल केस है? सिविल केस के अंदर ये जो कंडक्ट मनी है या कोर्ट आने जाने का जो एक्सपेंस है, आइडियली इट शुड बी गिवन एट द टाइम ऑफ सर्विंग द समन्स। जब समन्स किसी को दिया गया है सिविल केस में, उसी टाइम पे उसे आने जाने का खर्चा मिलना चाहिए। ये प्रोविजन क्यों है? अगर हम फर्स्ट लेक्चर देखें, सिविल केसेस आर दोज केसेस जहां पे डिस्प्यूट दो लोगों के बीच में, ठीक है। अभी मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में डिस्प्यूट है और मैं चाहता हूं कि समवन, अ पर्सन ए कम्स टू कोर्ट एंड गिव्स एविडेंस ऑन माय बिहाफ। तो मैं अगर उसको कोर्ट बुलाना चाहता हूं तो मुझे उसको समन्स देते समय ही आने जाने का पैसा देना चाहिए। अगर मैंने उसे समन्स के टाइम पे पैसा नहीं दिया है तो वो कोर्ट में आकर के पैसे मुझसे मांग सकता है, और ये पैसे मुझे ही देने हैं, कोर्ट को नहीं देने। सिविल केस में जो विटनेस को बुलाता है उसे ही उसके आने जाने का एक्सपेंस बेयर करना होता है। अगर मेरे विटनेस को ऐसा लगता है कि जो पैसा दिया जा रहा है वो कम है, तो वो सिविल केस में जज को बोल सकता है कि आप मुझे ज्यादा पैसे दिलाओ, ठीक है। एंड यूजुअली द विटनेसेस आर पेड वॉट एवर आर देयर रियल एक्सपेंसेस। दिस इज सिविल केस। क्रिमिनल केस के अंदर इट इज नॉट बिटवीन टू पार्टीज, इट इज बिटवीन द स्टेट एंड द ऑफेंडर। तो यहाँ पे आने जाने का जो पैसा है वो आपको स्टेट या कोर्ट देगी या गवर्नमेंट देगी, वो पार्टी नहीं देती। इसीलिए क्रिमिनल केस में समन्स के टाइम पर कभी भी पैसा नहीं दिया जाता है। क्रिमिनल केस में समन्स के टाइम पे पैसा नहीं दिया है तो भी आपको कोर्ट तो अटेंड करनी है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कोर्ट नहीं आऊंगा, ठीक है। एक बार आप कोर्ट पहुंच गए, वहां पर जाकर आप अपना एक्सपेंसेस पुटअप कीजिए, तो कोर्ट विल सी दैट इफ दे आर रीजनेबल एज पर रूल्स, दे विल रीइंबर्स योर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। इफ विटनेस इज फ्रॉम अ गवर्नमेंट ऑफिस, ठीक है, हमारे देश में ये नियम है कि वो कोर्ट में अगर एविडेंस देने जाता है तो उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस कोर्ट से नहीं लेना होता है, उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस अपने एम्प्लॉयर से लेना होता है। इट इज ओनली फॉर द गवर्नमेंट ऑफिसर्स। गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अलावा कोई भी प्राइवेट पार्टी है उसका ट्रैवलिंग एक्सपेंस कोर्ट ही देती है। बट अगर आप गवर्नमेंट में सर्व कर रहे हो तो आपको अपना अटेंडेंस सर्टिफिकेट अपने एम्प्लॉयर को देना है और वो आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस रिइंबर्स करता है। So these are the two differences between a civil case and a criminal case in terms of traveling expenses that are to be given. This is the last slide for the day. It's nearly an hour since I started. This is how a case looks like. If you look at the top, Nadiadna Bija, it is about the sessions judge. Okay. कोर्ट में कपड़वंज रोड नडियाद, कपड़वंज रोड नडियाद, जहां पर ये सेशंस कोर्ट है, ठीक है। सेशंस केस नंबर लिखा है, यानी केस के अंदर कौन से नंबर का केस है, ये कौन से पुलिस स्टेशन का केस है और उस पुलिस स्टेशन में कौन सा इसका इनवर्ड नंबर था, ठीक है। ये आपको केस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है।
फरियादी मतलब कंप्लेनेंट, बिकॉज इट्स अ क्रिमिनल केस, इट इज फ्रॉम द स्टेट, दैट इज गुजरात सरकार. विरुद्ध मतलब जिसके खिलाफ केस है, दैट इज कन्हूभाई छोटाभाई परमार, दिस इज द पर्सन हु हैज बीन अक्यूज्ड. साहिद मीन्स विटनेस, उसमें उसका नाम होगा, जैसे डॉक्टर UN परीख जिन्होंने PM किया है. कहाँ के डॉक्टर हैं? श्री कृष्ण हॉस्पिटल करमसद आनंद. मुद्दत तारीख मतलब किस तारीख को आपको कोर्ट में आना है, तो वो है 16/9/2015. इसमें वो सब डिटेल लिखी होगी और आपको ये बताया गया है कि 2015 साल के सितंबर महीना के 16 तारीख को सुबह 11 बजे आपको आ कोर्ट में આગળ मुकामे हाजिर રહેવું અને કોર્ટની રજા વગર ત્યાંથી જવું नहीं. इसमें क्लियरली लिखा है कि आपको किस केस में, कौन से कोर्ट में, किसे, कब हाजिर होना है. सो दिस इज हाउ ए समन्स लुक्स लाइक. नीचे कोर्ट की सील होगी और उसका नीचे सिग्नेचर होगा. ऐसे पेपर दो कॉपी में आएगा, एक पे आप साइन करोगे और वो कोर्ट में जमा हो जाएगा, दैट मींस द समन्स हैज बीन सर्व्ड. अब ये एक और केस है. इस केस में अगर तुम इतनी चीज पढ़ते हो, ठीक है, तो इसमें ये क्लियरली लिखा है कि કરમસદ ખાતે આવેલ શ્રી કૃષ્ણ હોસ્પિટલમાં તેઓનું PM કરવામાં આવેલ હોય તેના મેડિકો લીગલ ઓફિસર जिसका केस है, उसको जिसने एग्जामिन किया है, ठीक है, उसकी પત્નીની PM નોટ લઈ આપના કોર્ટમાં હાજર રહે અને તે દાખલો રજૂ કરે તે માટે હાલની સાક્ષી સમન્સ અરજી આપેલ છે. So this is an example of subpoena ducis tecum, where the court has asked you to come with the PM report and submit it in the court. In the earlier one, it was a subpoena ad testificandum, where he has to go and give a deposition. Second type, you were asked or the person was asked to come with the document and submit it in the court of law. So this is how the two different types of evidences, summonses look like. कभी भी कागज आता है तो उसको पूरा अच्छे से पढ़ना चाहिए कि हमसे क्या एक्सपेक्टेशन की गई है. So this is how a summons looks like when you are being asked to attend a court of law. और वहां आने जाने के लिए आपको एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का प्रोविजन तो अवेलेबल है. नेक्स्ट इज विटनेस. अभी आपको कोर्ट ने बुला लिया, आप कोर्ट पहुंच गए. कोर्ट में पहुंचने के बाद क्या करना है, ये हम नेक्स्ट वीक देखेंगे. दैट विल फिनिश ऑफ दिस चैप्टर कि वंस वी गो टू द कोर्ट, how we are examined and how a doctor is supposed to behave in the court of law. I've been trying to be very slow. Still, if somebody is not able to understand anything, I told you last time also, you can send me your query on my personal WhatsApp. I'll try to answer it in the next class. This finishes the topic for the day. Your next class is probably at 10:30. Okay? So you can have a break in between.